Anna, tell us about yourself. My name is Sampada Fotedar. I am a final year student in Delhi University, Zakir Hussain College. I'm pursuing BA Honours Psychology. I belong from Srinagar, Jammu and Kashmir, and I also come from an army background. My hobbies are reading books, journaling, playing the guitar, and singing. And being from an army background, I have explored a lot of places and met different people throughout growing up. That's about Okay, it. so add few more things in your introduction. I chose psychology back when I was in class 10th, when I had to consider the field I want to study. So initially, I had gone for PCB because I didn't want to study history, taking humanities, and so I chose PCB along with psychology. My main goal was always to study psychology, and throughout 2 years, I really enjoyed learning the subject. And by the end of my 12th, I decided that I wanted to pursue psychology only. So what do Hence, you mean by learning the subjects? Matlab, what was the matlab, what did you enjoy basically? so I enjoyed the fact that it was very the main fact I enjoyed was that it was very theoretical. I like reading a lot. I like So roaming do you on consider to words. psychology is very theoretical? It doesn't have any practical application? So the subject in itself is theoretical, but later on in life, it's obviously applied. But in Okay, general, when you so study it, so it's very theoretical. so which subject did you like most? In psychology, Yes, in psychology only. so I liked child psychology the best. I came to this decision when I got into my final year, fifth semester, when I studied developmental psychology in my college. So I decided that this is my favorite and I wanted to pursue it. Okay, so what career do you look for yourself after psychology or after PG? So I want to pursue counseling psychology, and then after that, I want to pursue a PhD researching in child psychology. And I see myself as an established professional with her own practice because it's my dream that I someday open my own clinic and become financially independent. So don't you want to go for research or enrich the subject, or you'll be going for practice? Yes, sir, I mentioned I after my masters I want to go for research, but after that I would like to practice. So what is the frontier research that is happening in child psychology area? Do you have any awareness about that? No, sir, I'm not aware about that yet. I still So, have to see. so have you read any major paper or research paper in child psychology? So I have read a paper on the addiction of adolescents to social media. I, in fact, wrote a dissertation on how social media affects the body image of So, adolescents. so what was the finding of that paper, and where it was published? So it wasn't published. I am still working on that paper as No, my it final was year your paper. dissertation. No, have you read any published paper in the field? Yes, sir. Yes, sir. I have. So, I have. so mention one or tell me about one paper that you have studied. What was the hypothesis and what was the finding of that paper? So there was a paper I read online. It was about the impact of social media on body image dissatisfaction in males and females. Hmm. It was basically a comparative research design. So, do you Uh, remember the writers or the professor's name who have no, written? sir, I cannot Um, happen to remember the writer's name. and do you remember the journal where it was published? No, sir, I don't remember the journal. I can tell you the Okay. result of it and the hypothesis. What was the hypothesis? So the hypothesis was that females would have more body image dissatisfaction as compared to males. But when the result came out, there was no significant difference between the body image dissatisfaction in males and females. So, So so the can you tell me hypothesis was what proved was the wrong. research tool they have used? Sorry, sir. What was the research tool they have used? So they used a scale called motivation in electronic interaction scale. Short form is MEIS. They Okay. used 5 items. It's a 23-item scale, out of which they used 5 items, and they calculated the reliability and validity of those 5 items. And that is the one that was used for the research. Okay. So can you tell me what is the difference between reliability and validity?
So validity means how valid the test is, whether it calculates the result properly or not. And reliability, I don't happen to remember the exact definition right now, sir. Okay. So you need to rate this. It's very important if you want Yes, to do sir. research. So Yes, so sir. now let's go for the your future project. You want to open up your own clinic Yes, for. sir. Someday. So what did motivate you for do this? Sir, actually, since my childhood, my mother wanted me to be very financially independent so that I don't have to depend on anybody till the time I grow old. And opening a clinic will give me what I require till the time I finally grow old. So I think that is what was my motivation. I don't want to depend on anybody for my finances and my So living. so so that you can do it through by going to college, university, matlab as a teaching profession or. So, but opening up my own clinic will give me an additional advantage of flexible working hours and devoting my time towards my family and myself also. College and school will give me a very fixed schedule, and I might not find the time to give myself some time. So that is what Okay. motivated me to Okay. open Tell my me, clinic. what do you expect from tests? So from this, I expect a world-class education, basically, something So, that so how will do you know drive that me we do to provide? How do you research. know that we do provide world-class education? So I researched on the syllabus and the core papers that this So, teaches. does the syllabus makes any teaching world-class? So I guess it does, uh, So, because have the you also syllabus. researched other universities' PG program syllabus? Yes, sir, I have. So, what difference did you find that you can say that test So program there is were world-class? so there were some papers in TISS that I found really attractive as compared to the other universities. So that is what motivated me to apply to this, and that is what made me realize that this is the education I need. So what is your agenda for next 2 years? Matlab, if you'll get selected in tests, so what's in your mind? What will be you doing in these 2 years? So I would prepare my research paper, of course, and other than that, I also want to pursue a curricular activity side by side. I've Like, So I haven't researched on the curriculars of this yet and about the student life. mm, But once I do, if there is something related to music, I would like to join that so that I mm. can give myself a break on a daily basis, and I can find enough time to pursue my hobby as well. I feel that is very important. So, Okay, okay. So one last question I would ask you. yes, sir. See, we see a lot of social issues that happens around our matlab, in society and in India. Yes, sir. So what's how psychology can help as a policy component to deal with them? Can you tell about this? Matlab, if you can think about let's say um, like child labor. Hmm? Yes, sir. So so if the government wants to solve the issue of child labor, Yes, sir. how government can use psychology in their policy, matlab, So, component as a component of yes, policy. sir. So I feel the first step that government should take is make child psychologists and therapy reachable for those children, so that those children can make use of those resources. Secondly, the government should also collect funds for those children's education. Uh, maybe that will help. Maybe that will help them reduce the issue of child labor. And psychology, in addition, will provide some additional mental health help to those children, and maybe some career counseling might help them decide what they want to pursue ahead. If there is something they are interested in, some career counselor can help them find their path.
and maybe that will ensure a bright future for this country. But the first and foremost step would be to make therapy and child psychology professionals reachable to those children ओके and संपदा, affordable as well. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Thank you, sir. तो अब आते हैं फीडबैक पे। आई नो लास्ट Yes, टाइम sir. से थोड़ा कम ही लगा मुझे, मतलब डिस्पाइट यू हैव प्रिपेयर्ड, मुझे ऐसा एक फील होता है कि मतलब यू आर नॉट वेरी मच कमिटेड टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट। ये तुम्हारे इंटायर कम्युनिकेशन में ऐसा आ रहा है, ठीक है। एंड द Okay. थिंग इज, जैसे जब मैंने तुमसे पूछा कि व्हाई डू वांट टू ओपन योर ओन क्लिनिक, सो Yes, sir. क्लिनिक खोलने का ये ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकता है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ? आप, वो बाई प्रोडक्ट है, मतलब सी मतलब व्हाट यू वांट टू डू इज मोर इम्पोर्टेंट, Okay. है ना। तो तुम उस पे बताओगे ना कि थ्रू क्लिनिक आई कैन हैव, मतलब एक होता है ना कि कस्टमाइज रिसर्च सेंटर, है ना, एक एक अवेयरनेस प्रोग्राम, इनरिचमेंट रीच प्रोग्राम हम कर सकते हैं। एंड द पेन दैट आई हैव फेल्ट एट डिफरेंट इंटर्नशिप फॉर चिल्ड्रन, दैट आई विल बी डीलिंग विद दैट, है ना। तो Yes, ये sir. सब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना अपना सेंटर खोलने के लिए। Yes, अब sir. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का एक बहुत मतलब होता है। जैसे मान लो कि लेट्स से somebody is living in मतलब फॉरेस्ट एरिया या पहाड़ों पे कोई रह रहा है। Yes, अब वो sir. अपना एक घर सा बना के उसमें कुछ कुछ प्लांटेशन करके या उसमें एक रूम बना के हाउस किस्ट खोल के अपनी मंथली लिविंग को, मतलब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है। एंड Yes, इज sir. ऑल्सो सेविंग फॉर द फ्यूचर, मतलब सोशल सिक्योरिटी भी थोड़ा डेवलप कर रहा है, तो वो Yes, भी तो sir. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ना। एंड समबडी, Yes, sir. मतलब किसी के लिए जब तक उसके पास लग्जरी के सारे आइटम ना हो, उसके पास कार ना हो, वैकेशंस के लिए पैसे ना हो, है ना, विंडो शॉपिंग के लिए पैसे ना हो, तो वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं मानता है। तो मतलब व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी यू आर लुकिंग फॉर? अब हम तो सुन के बोर हो गए कि तुम तो बोल रही हो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हम जानना चाहते हैं कि विद दैट क्लिनिक व्हाट डू यू वांट टू अचीव, है ना। ऑफ कोर्स चलेगा, अगर तुम कोई काम अच्छा करोगे तो तुमको इंडिपेंडेंस देगा ही। Yes, sir. इफ यू डूइंग समथिंग गुड यू विल बी, मतलब जो तुम चार्ज करोगे वो तुम्हें पैसे मिलेंगे ही, हाँ जी, है sir. ना। देयर आर हाँ लॉट जी. मेनी वे टू अर्न मनी। तो Yes, अगर sir. आप हमेशा, मतलब इनफैक्ट मैं सारे ही बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप अच्छा काम करोगे आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ कितना पैसा कमाना है, मतलब बाय ओपनिंग अ क्लिनिक यू कैन नॉट थिंक ऑफ अर्निंग लाइक बिल गेट्स। मेरी बात समझो ना, Yes, जब sir. आपको बिल गेट्स की तरह कमाना है तो आपको उसी तरह का काम में जाना है ना। हाँ. तो आपको बिजनेसमैन की तरह कमाना है तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। बट आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस चाहते हो एज अ क्लिनिक ओनर की तरह, तो आप उसी तरह का, कि वो पिच करने की जरूरत नहीं है ना। आपको पिच करना चाहिए था कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दैट क्लिनिक। हाँ सर, उस एंगल से सोचा नहीं मैंने। हाँ. उस बोलना तो उसी एंगल से था। फिर Okay. उसमें क्या है कि जैसे कुछ रिसर्च पेपर वगैरह देख लो, मतलब कि हाँ. जैसे आप जब जब तुम बोलते हो ना कि थ्योरेटिकल लर्निंग को एंजॉय किया, तब मैंने पूछा रिसर्च पेपर के बारे में, वरना नहीं मैं नहीं पूछता। हाँ तो जी, जैसे सर. अगर तुम नहीं बोले होते कि तुमने थ्योरेटिकल लर्निंग एंजॉय किया, अब इफ यू आर एंजॉयिंग थ्योरेटिकल लर्निंग स्पेशली फॉर द सब्जेक्ट हुज थ्योरीज आर वेरी मच बेस्ड ऑन रिसर्च ओनली, रिसर्च पेपर. यस. है ना। तो वो जैसे जैसे फिजिक्स वगैरह की पढ़ाई होती है ना, तो ग्रेजुएशन में उतना रिसर्च पे हम नहीं जा पाते। सो वी गो द फ्रंटियर ऑफ लाइन, फ्रंटियर में जो एजुकेशन है ना उसमें हम एमएससी में जाते हैं। बट यस सर. साइकोलॉजी में आई हैव सीन, है ना, कि ग्रेजुएशन लेवल पे ही आप बहुत सारे सब्जेक्ट के फ्रंटियर तक चले जाते हो। यस सर. फ्रंटियर मतलब कि जो अभी रिसर्च हो रहा है पिछले जी. 50 सालों में जो डेवलप हो गए, तो बहुत सारे सब्जेक्ट में आप सीधा वहां तक चले जाते हो। इवन हाँ मैनेजमेंट जी. में या कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ग्रेजुएशन लेवल पे ही यू स्टडी द मोस्ट फ्रंटियर लेवल लर्निंग। तो यस जब सर. आप साइकोलॉजी में ऐसे कई सब्जेक्ट्स हैं, और स्पेशली व्हेन यू से यू आर इंटरेस्टेड इन चाइल्ड साइकोलॉजी, तो वो यस. तो ऑलरेडी यू आर टॉकिंग अबाउट कि क्या व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। द यस रिसर्च सर. पेपर दैट यू मेंशन्ड इज लाइक वेरी फ्रंटियर रिसर्च, जो आज का रिसर्च है ना। यस दस सर. साल पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, मतलब हाँ. वो चीज ही नहीं था, मतलब वो हाँ सोशल जी. मीडिया ही उस तरह से नहीं था। तो आप जब जब इस तरह का कोई फील्ड सेलेक्ट करते हो तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा कि थोड़ा वी विल टॉक अगेन विथ यू, मतलब हम इस पे फिर से तुमसे बात करेंगे। तुमको अपनी यस पूरी सर. इंटरव्यू को थोड़ा, जैसे मैंने ये पूछा कि व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव फॉर नेक्स्ट 2 years, है ना। तो अब आपको उसमें
अपने कैरियर गोल से रिलेटेड बोलना था तो तुम उसमें म्यूजिक और करिकुलम ये सब बोल रहे हो, वो सब तो हाँ एक्चुअली, हाँ पैरेलल मेरे था। मेरे को तुम एक्चुअली लगा था आप पूछ रहे हो कि कॉलेज में क्या करना है हाँ तो तो कॉलेज में क्या करना है उस नेक्स्ट 2 ईयर का टारगेट बताना था ना तुम्हें, कि हम करिकुलम के साथ साथ हम अपना जो गोल है चाइल्ड साइकोलॉजी उसके लिए पैरेलल स्टडी, उसके लिए इंटर्नशिप है ना, उसके लिए हाँ को जी, करिकुलर एक्टिविटीज फाइंड आउट करेंगे। यस और सर, जैसे एक एक फिर से याद कर लो, करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। करिकुलर का मतलब होता है जो कोर्स के साथ ऑटोमेटिक इनबिल्ट है, समझ रहे ओके, हो। को यस सर, करिकुलर हो गया जो कोर्स के साथ इनबिल्ट नहीं है बट कोर्स को सपोर्ट करता हुआ है। अच्छा, यस सर, और एक्स्ट्रा करिकुलर इज समथिंग विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोर्स। तो जैसे यस, मान लो कि अगर कॉलेज वाले तुमको एक प्रोजेक्ट कराते हैं, फील्ड प्रोजेक्ट कराते हैं, तो वो यस सर, करिकुलर एक्टिविटी अच्छा, यस सर, है ना। लेकिन तुम कॉलेज वाले एक एक रैंडम वर्कशॉप करा दिए जो कि आपके सिलेबस यस का पार्ट सर, नहीं है, ना ही आपके करिकुलम का पार्ट है, लेकिन तो वो हाँ, को करिकुलर एक्टिविटी हुआ। लेकिन फील्ड जो है वो आपके करिकुलम का यस, पार्ट यस सर, है ना। तो जैसे मान लो कि अगर कॉलेज वाले बोलते हैं कि आपको एक डिजर्टेशन करना है, तो वो जी, करिकुलर एक्टिविटी है, वो आपके यस उसमें सर, मार्किंग का पार्ट है। बट यू वांट टू मेक एक रिसर्च तुम खुद कर रहे हो अपनी तरफ से, यस सर, दैट्स योर यस को सर, करिकुलर। तो तुमको ये बताना है कि मेरी को करिकुलर एक्टिविटीज जो होंगी वो चाइल्ड साइकोलॉजी के फील्ड में होंगी, यस सर, वेर यूर बी इन, मतलब अपनी डेप्थ बढ़ाओगे, क्योंकि तुमको अपना फ्यूचर गोल के भी लिए तो खुद को तैयार करना है। यस सर, जब क्लिनिक खोलोगे तो अनपढ़ की तरह वहां नहीं बैठोगे ना, वहां पे तुम्हें जितना ज्यादा एक्सपोजर रहेगा उतना ज्यादा अच्छा वहां पे काम करोगे, तो उसके लिए तैयार यस करना। सर, तो तुम यू आर नॉट मेकिंग एनी सिंक इन दीज पाथ, ओके सर, हाँ, समझ रहे हो। तो एक तो तुमको रिसर्च पेपर पढ़ना है, दूसरा यस सर, वो जब मैंने तुमसे पूछा कि टिस्ट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो तुमको उसमें ये बताना चाहिए कि जैसे वर्ल्ड क्लास टीचिंग वो सब तो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, वो तो कोई भी बोलता है। तुमको ये बोलना है कि टेस्ट की एक्सपेक्टेशन तुम्हारी ये है कि मतलब विच यू नो दैट टेस्ट विल प्रोवाइड मी, मतलब ये तुम बोल सकती हो है ना कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आई नो टेस्ट इज गोइंग टू प्रोवाइड मी, दैट इज अ वेरी गुड सिलेबस to cover the entire spectrum of psychology, and this will also give me opportunity to tie up with the teachers and other student or fellow students or seniors with for my own area of interest based work, ठीक है। यस जैसे सर, मान लो कि तुम्हारे ग्रुप में कोई और हाँ बच्चा मेक्स होगा तो सेंस, उसके साथ मिलके तुम, तो इस तरह से तुम्हें बताना है ना, तुम अपनी अलाइनमेंट, क्योंकि तुम्हारा एकेडमिक कोर्स है, तुम यस इसको सर, सुपरफिशियल लेके नहीं चल सकते, यस सर, ठीक है। तो चलो यस तुम सर, एक बार और इस पे मेहनत करो, और वो कौन जो यस इधर, सर, हाँ वो लर्निंग हटाओ जो तुम इधर उधर सीख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा कोर्स डिफरेंट है ना, तो उसमें प्रोफेसर की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट है, ठीक है। तो यू डोंट हैव यस टू सर, बी वेरी कॉन्फिडेंट बस, लेकिन आपको अपना अलाइनमेंट रखना है, हर क्वेश्चन में अलाइनमेंट रखनी है। अच्छा यस सर, लास्ट एक और फीडबैक दे दूं, जब हम यस तुमसे सर, पूछे कि पॉलिसी वो मतलब पॉलिसी में कैसे हेल्प कर सकता है, मतलब सोशल इशूज इसमें, तो जैसे ये तो हमने साइकोलॉजी के स्टूडेंट से ही सीखा है, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर कोई स्टूडेंट है, तो वो यस सर, उसका ही कहना था कि मतलब जो इंडिया में पॉलिसी बनती है उसमें हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को ध्यान नहीं देते, वी बेसिकली कंसिडर द इंफ्रास्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी। यस सर, तो जैसे तुमको ये बताना है कि जैसे मान जैसे उसने स्वच्छ भारत अभियान के लेके बोला कि यस जैसे सर, स्वच्छ भारत अभियान पे ऑल नहीं सॉरी जो ओपन डिफिकेशन को खत्म करने के लिए ऑल दैट वी आर डूइंग इज मेकिंग टॉयलेट्स, but यस we सर, are not putting the psychological component in policy to train people to use toilets। यस सर, दैट्स राइट, तो अब जैसे चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट को पॉलिसी बनती है, तो ये बनता है कि आप जेल कर देते हो, कि किसी ने चाइल्ड लेबर रखा तो जेल कर देंगे, यस है ना, सर, इतना ये फाइन लगा देंगे, इस तरह यस की सर, पॉलिसी बनाते हो। बट तुमको ये बताना चाहिए था कि इसमें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये रख दें कि हम एक जनरल एम्प्लॉयमेंट के अवेयरनेस पे हम ये डालें कि चाइल्ड लेबर इज बैड। हाँ जी, हाँ जी, तो लेट्स मतलब साइकोलॉजिकली कुछ ऐसा ऐसा प्रोविजन वो कुछ कंपोनेंट रखे पॉलिसी का, सो दैट एक वो भी अवेयरनेस तैयार हो। तो जैसे अब तो गवर्नमेंट फिर भी बहुत यूज करती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, तो उसमें बहुत साइकोलॉजिकल कंपोनेंट पे अवेयरनेस तैयार किया जाता है ना। यस सर, तो उस तरह से तुम अपने सब्जेक्ट का यूज भी थोड़ा एक्सप्लोर करो इसमें भी, ठीक है। जी सर, यस चलो, सर, तो यस, ये तुम फिर से बात कर लेना हमसे हाँ पूरा सर, एक बार पढ़ डेफिनेटली, के, हाँ, क्योंकि तुम हाँ वो हाँ, आज आज वाला हमको बहुत वो नहीं लगा, यस, मतलब अप टू द मार्क है ना।
ठीक है तो थोड़ा तुमको अपने वो कैरियर गोल से सब्जेक्ट से अलाइन करके इंटरव्यू देना है। यस सर। है ना, वो तुम एकदम बिल्कुल इसको पैरेलल ट्रीट कर रही हो कि हम अलग टाइप की पर्सनालिटी है, कोर्स अलग, ऐसा नहीं है, मतलब मैच कराना है। वो एंगल नहीं दिया मैंने। जी सर। ठीक है। और हाँ, वो भी बता दूं मैं तुम्हें, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, है ना। यस सर। वैलिडिटी फिर भी तुमने ठीक बोला, जैसे वैलिडिटी इज राइट टूल, मतलब राइट यस टूल सर। कहने का मतलब कि जैसे अगर हम टेम्परेचर मेजर करना है तो हम वही टूल यूज कर रहे हैं जो टेम्परेचर मेजर कर रहा यस है ना। सर। रिलायबिलिटी का मतलब कि हम बार बार उस टूल को यूज यस। करें तो सेम टेम्परेचर हो। हाँ यस सर। यस सर। याद आ गया। तो मतलब हाँ, तो मुझे टेम्परेचर, डेफिनेशन भी याद आ गई। हाँ, यस सर। तो वैलिडिटी मतलब कि जो जिस चीज को मेजर करना है वही टूल यूज हुआ है, और यस सर। रिलायबिलिटी मतलब कि अगर हम उसको बार बार भी यूज करें तो सेम मेजरमेंट है। सेम रिजल्ट निकलेगा। हाँ, यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है चलो सर। फिर, नेक्स्ट ओके। टाइम। थैंक यू।